गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आप लोगों को रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का फुल फ्लेज क्वेश्चन करा रही हूँ। विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो यू कैन ईजिली डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑफ फुल फ्लेज क्वेश्चंस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, दैट इज यू मेक अ रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट. So we discussed today question number 31. We have done already the question number 1 to 27, and after that we can do question number 31, full-fledged question with full of adjustments and even how retiring partner amount is to be paid, or payment in cash, or amount is to be transferred in loan account. We will discuss in this question. So the question is, first we need to read the question and after that we make the accounts. Kanika, Disha and Kabir were partners in the ratio 2:1:1. 31st March 2016, their balance sheet is that. Creditor is theirs, employees, provident fund, dono both are the liabilities, and capital balances are given 2 lakh, 1 lakh, 80,000. Bank balance is 60,000, debtors is 60,000, stock is 1 lakh, fixed asset is 2 lakh 40,000. Stock is 1 lakh. P&L account का balance is 20,000. So goodwill की treatment करनी है. Goodwill from 2 years purchase of average profit of 3 completed years. Average profit of 3 completed years. So we need to calculate the average profit. 2013-14 1 lakh, 2014-15 1 lakh 30,000, or 2015-16 loss is there 20,000. So we need to calculate goodwill. And the last one is fixed assets were to be increased to rupees 3 lakh. Fixed asset is revalued. Stock was to be valued at 120%. Again, stock is also increased. And the amount payable to Kanika was transferred to her loan account. So prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet of the reconstitution. So let's start the question. मैंने आपके लिए already formats are prepared. Revaluation account, partners capital account and the balance sheet. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर मैंने बैलेंसेस डाल दिए थे 2 लाख, 1 लाख और 80,000. प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस है वो भी मैं राइट ऑफ कर देती हूँ. 20,000 को 2:1:1 में बांट दो. फिर सेकेंड और थर्ड एडजस्टमेंट क्या थी? फिक्स्ड एसेट पहले 2,40,000 की थी और वो अब 3 लाख की हो गई हैं. कितने लाख की हो गई हैं? 3 लाख की. तो जब हमारी फिक्स्ड एसेट्स बढ़ती हैं तो क्रेडिट साइड पे आती हैं 60,000 से, क्योंकि 3 लाख माइनस 2 लाख 40,000, और स्टॉक भी 1 लाख से 120% इंक्रीज़ हो गया है, यानी 20% ऑफ 1 लाख 20,000 का इंक्रीज़ आया. लगे हाथ बैलेंस शीट में भी हम फिक्स्ड एसेट्स डाल देते हैं 3 लाख और स्टॉक डालते हैं 1,20,000. गॉट इट? रिवैल्यूएशन के 2 एंट्रीज थी, दोनों डन. तो वी नीड टू बी कैलकुलेट द प्रॉफिट. सो टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, ट्रांसफ़र टू कनिका, दिशा, कबीर 80,000, 40,000, 20,000, 20,000. So total will be 80,000, 80,000. रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया. एक्चुअल में इसके मार्क्स कितने हैं? 2 एंट्री यहाँ पे हाफ मार्क्स की. दिस 1.5 मार्क्स इज अचीव्ड. प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय प्रॉफिट ऑन revaluation account 40,000,
20,000, 20,000. Now next step, how to calculate goodwill. Profits are given to you. 2013-14 profit is 1 lakh, and 2014 profit is 1,30,000, and 2015-16 there is a loss of 20,000. So total profit 1 lakh, 1,30,000 minus 20,000. So total profit is 2,10,000. Average profit is equal to 2,10,000 divided by 3, 70,000, and goodwill 70,000 into 2 years purchase, 1,40,000. So goodwill 1,40,000, Kanika share 1,40,000 into 2 by 4, 70,000, and 70,000 Kanika by Disha by Kabir, 35,000, 35,000, और 2 Kanika 35,000, 35,000. Goodwill entry also done. If you have any doubt, ask me. Goodwill entry clear. Now we need to be close the accounts. 3,10,000, 1,20,000, 1 lakh. 3,10,000, 1,20,000, 1 lakh. Balance carried down. कनिका का बैलेंस कैरेट डाउन ना निकल के कनिकाज़ लोन अकाउंट आएगा, क्योंकि ये रिटायर हो रहा है तो इसके लोन में ट्रांसफ़र करने को बोला है. और बाकियों का क्या आएगा, बैलेंस कैरेट डाउन, क्योंकि वो अभी हमारे पार्टनर्स चल रहे हैं. 1,20,000 में से 40 गए 80,000, 1 लाख में से 40 गए 60,000. तो बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट दिशा और कबीर 80,000 और 60,000, 1,40,000. कनिका's लोन अकाउंट 3 लाख. और फिर हम अपनी बैलेंस शीट में देखेंगे क्या क्या बचा है. बैंक बैलेंस बचा था 60,000 का, एज इट इज़ आएगा क्योंकि हमने कुछ पे नहीं किया. डेटर्स भी एज इट इज़ आएंगे 60,000 के. क्रेडिटर्स आएंगे 53,000 के, लाइबिलिटी साइन. और एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड आएगा 47,000 का. देख सकते हैं आप, बैंक बैलेंस, डेटर, क्रेडिटर, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड दोनों साइड का टोटल किया 5,40,000. तो ये हमारा पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन है. मैं दोबारा से आप लोगों को शो कर रही हूँ. हमने क्या किया था, रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन निकाला 2 एडजस्टमेंट्स के साथ, फिक्स्ड एसेट और स्टॉक के साथ. आफ्टर दैट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का काम किया और फिर हमने एक बैलेंस शीट प्रिपेयर करी. सिंपल क्वेश्चन था. जो अमाउंट जो पार्टनर रिटायर हो रहा था उसकी हमने लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया. So after that you can solve the questions. I will give you the question on WhatsApp. Please watch the video.